Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to be discussing some very important extra questions from chapter number 12 NCERT Math Class 8 Algebraic Factorization. Here I've got a collective worksheet of factorizing and dividing. We have got all the important questions covering all the concept that we have studied in our previous videos and in this chapter. So without any further ado, let's get started. Question number 1, A part says 3x raised to the power 5 plus 3x raised to the power 4 minus 6x raised to the power 3 plus 9x plus 12. Here we can find that 3 is a common factor in all of these terms. If we take 3 as common, we are left with x raised to the power 5 plus x raised to the power 4 minus 2x raised to the power 3 plus 3x plus 4. Since we can see that there is no more common factors inside, it will not be factorized further. Now let us come on to our B part, that is 6ax minus 8ay minus 9bx minus 12by, right? Yes. Here we'll be using the method number 2 for factorization that we have seen, that is regrouping. We are going to be considering this as a group and this as a group. Hence, we are left with 6ax minus 8y, and there's a minus sign in the middle, 9bx. Now, since we have taken minus from both this and this, because we know कि minus into minus is plus, और क्योंकि हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया है तो अब यहाँ पे माइनस नहीं बचा ना, माइनस भी यहाँ पे आ गया, ये वाला माइनस भी इधर ही आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12by, राइट. नाउ वील सी कि इन दोनों इसमें एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है. सो वी फाइंड 2a कॉमन, इधर आ गया 3x माइनस 4y माइनस इधर आ गया आपका 3 कॉमन ले लिया हमने, 3b कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच रहा है 3x प्लस 4y. अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें इस माइनस को प्लस बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने माइनस कॉमन लिया है उसकी जगह हमें प्लस कॉमन लेना होगा. अगर हम प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट. तो हमने यहाँ पे ले लिया है प्लस कॉमन, यहाँ पे आ गया आपका माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस लिया है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा. Hence we are left with 3x minus 4y and 2a plus 3b. This is a good question, so please note it down. Then the C part says 9a square plus 49b square plus 42ab. 9a square plus 49b square plus 42ab, right? Here let's see the first method, that is a common factor method. We can observe कि इन तीनों terms में कोई भी common factor नहीं है. Second method is a regrouping method. Regrouping would automatically not work in this since there are only 3 terms. Now we are left with the third method, that is identity and splitting the middle term. We can see that splitting the middle term won't work either, hence we'll see if any identity is followed here. So we can write 9a as 3a का whole square, 49b square को हम 7b का whole square लिख सकते हैं, और 42ab को क्या मैं 3a into 7b into 2 3a into 7b into 2 लिख सकती हूँ.
So 3a into 7b would be 21ab and 21ab into 2 would be 42ab. So यहाँ पे आइडेंटिटी फॉलो हो रही है. कौन सी? सबसे पहले हम लिख देते हैं 3a into 7b. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है. यहाँ पे कि पहले तो हमारा a स्क्वायर है, फिर हमारा b स्क्वायर है, फिर 2 इंटू a इंटू b है. हमें पता है जब भी ऐसा कुछ होता है इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट. सो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है. a इज़ 3a, b इज़ 7b. तो ये हो जाएगा 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab equals to a plus b का whole square. Now let us come on to our d part. That is 4x square plus 25y square minus 20xy. Right? Yes. So इसमें सबसे पहले तो जब भी आपको एक्सप्रेशन ही होता है ना, आप ट्राई करो कि आप इनको स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख सको. क्या मैं 4x स्क्वायर को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ इसको एज 2x का होल स्क्वायर माइनस 25y को मैं 5y का होल स्क्वायर, और ये 20xy को क्या मैं 2x इंटू 5y इंटू 2 लिख सकती हूँ. 2x इंटू 5y हो जाएगा आपका 10xy. 10xy इंटू 2 होता है आपका 20xy. तो यहाँ पे आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, राइट. यस. अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है? ये हमें दिख रहा है a स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब हमें पता है क्योंकि यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस. तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो हम इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं. तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2a, ठीक है. तो a है हमारा 2x माइनस का साइन, b है हमारा 5y. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, राइट. अब हम कर लेते हैं अपना e पार्ट. दैट इज़ 36a स्क्वायर माइनस 121b स्क्वायर. अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ना ये सिर्फ a पे है और ये वाला सिर्फ b पे है. अगर ये 36 पे भी होता तो ये ऐसे होता, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट्स में नहीं दिया हुआ तो ये सिर्फ a और b पे है. तो मैं 36 को किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ? 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और a स्क्वायर हमारा है. तो क्या मैं इसको 6a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल. माइनस 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और b स्क्वायर तो है ही. तो क्या मैं इसको 11b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस. अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि है a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस b. ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी. तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो a प्लस बी यानी 6a को हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? अब 5x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर आपको दिया हुआ है.
ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल 5 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो हमने लिखा यहाँ पे 5 x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, राइट। अब 5 को हम बाहर रहने दो, अब अंदर ब्रैकेट्स में देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स होल स्क्वायर, राइट। 4y स्क्वायर को क्या मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, कैसे, क्योंकि 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, y को मैं y स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और 5 हमने बाहर लिया है। अब यहाँ पे ये सेम ऊपर वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक बार ऐड होगा ए प्लस बी और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए ये हो जाएगा 5, फिर x प्लस 2 है, एक बार ऐड होगा और x माइनस 2y, क्लियर। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट इज r रेज टू द पावर 4 माइनस s रेज टू द पावर 4। ये सारे बहुत आसान है, ठीक है। तो r रेज टू द पावर 4 को मैं r स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जबकि आपका चैप्टर 10 था उसमें देखा था कि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर mn, यानी पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एंड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 ही हो जाएगा, है ना। ये एंड में 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमें पता है 4, तो ये एंड में r रेज टू द पावर 4 ही रहेगा, ठीक है। माइनस का साइन हमने लगाया, s को हम लिख सकते हैं s स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे हमने r को लिखा है सेम वैसे ही। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी, ये सेम आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक बार ऐड करो ए प्लस बी और एक बार सब्ट्रैक्ट करो ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक बार ऐड कर दो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब क्या ये ख़त्म हो गया, नहीं, ये सेम आइडेंटिटी अब इधर भी फॉलो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आर प्लस एस आर माइनस एस, और क्योंकि आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। Hence, this is your final answer. H part देखते हैं अब, that is x square plus 17xy plus 72y square, x square plus 17xy plus 72y square, okay. राइट तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें हम रीग्रुपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, वेल मैं एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट क्या मैं 72 को किसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि 72 को मैं किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकती, इसलिए हम अपने लास्ट और फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज़, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड विजिट माई प्रीवियस वीडियो, इट हैज़ ऑल अबाउट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके नाउ सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि x का कोई कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकल, नहीं, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। 1 इंटू जो आपका 72 दिया हुआ है, तो 1 इंटू 72 हमें पता ही क्या हो जाता है, 72 ही रहता है।
और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। अब 72 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 से ये हो जाएगा 36 टाइम्स, राइट। 3 से ये हो जाएगा 24 टाइम्स। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, ये 4 से भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 4 1 टाइम्स एंड 18 टाइम्स, ठीक है। सो 18 टाइम्स। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नो। क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस, 6 12 टाइम्स। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नो, राइट। 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर ऑब्वियसली 1 एंड 72 तो रहेगा ही। क्या ये 8 से डिविजिबल है? यस, 8 9 जा 72, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव है तो प्लस प्लस लगा देते हैं, राइट। अब हमें एक परफेक्ट पेयर निकालना है जिसको ऐड करके हमारा आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए जिसको ऐड करके हमारा आंसर आना चाहिए? 17। अगर इन जिन भी पेयर्स में से आंसर 17 आ जाएगा वो हमारा करेक्ट पेयर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टेस्ट इट आउट। सबसे पहले 2 + 36 38 हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। 8 + 20 3 + 24 27 हो जाता है, नहीं। 4 + 18 22, नहीं। 6 + 12 18, नहीं। 1 + 72 73, नहीं। 8 + 9 17। सो 8 + 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट पेयर है। x² को मैं x² लिख सकती हूँ, प्लस 17xy को मैं लिखूँगी 8xy, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 9xy और फिर प्लस 72y² एज इट इज़। अब क्योंकि हमारे 4 आ गए हैं तो हम इसको रीग्रुपिंग से कर सकते हैं। यस, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे हो जाएगा x + 8y, पॉजिटिव साइन कॉमन लिया यहाँ पे और 9y कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा x + 8y। अब क्योंकि x + 8y इधर भी है तो x + 8y को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा क्या? x + 9y, राइट। x + 9y, तो इसको यहाँ पे ले लिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है x + 8y एंड x + 9y। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद इट प्लीज़ go and check out my previous video. Now next one is our last part for this particular video, that is the I part. So we have 4x² - 11x - 3. Right? Yes. तो सबसे पहले मेथड से देखते हैं जो कि है कॉमन फैक्टर मेथड। क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं। क्या इसमें हम रीग्रुपिंग कर सकते हैं? नहीं। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी फॉलो हो रही है? ऑल्दो मैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट कैन आई रिप्रेजेंट 3 एज अ स्क्वायर? नो। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज let's check with splitting the middle term. तो हमारा सबसे पहले तो x का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे -3 है। आंसर आ रहा है आपका -12। सो -12 को सबसे पहले हम 2 से कर सकते हैं। अभी माइनस को छोड़ दो, अब सिर्फ 12 सोचो। 2 × 6, राइट। 3 × 4, फिर 4 × 3 सेम ही हो जाएगा, 5 के टेबल में नहीं आता। 6 × 2 ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो इसके बेसिकली और ऑफ कोर्स 1 × 12 as well, right? So now since एक हमारे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और हमें पता है कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, तो इसमें दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही नंबर नेगेटिव होगा। और वो कौन सा नंबर होगा वो मिडिल टर्म डिसाइड करेगा। क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब ग्रेटर नंबर यानी जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव होगा, तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम एक करेक्ट पेयर चूज़ करते हैं। 2 - 6 इज़ -4, सो नो। 3 - 4 इज़
-1? No. 1 - 12 is -11. तो ये करेक्ट पेयर निकला हमारा। 4x को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब ये हो जाएगा आपका +x -12x -3। अब क्योंकि 4 टर्म्स हैं, रीग्रुपिंग कर देते हैं। x कॉमन लिया यहाँ पे बचा 4x + 1। यहाँ पे हम ले लेते हैं नेगेटिव साइन कॉमन, और हम ले लेते हैं 3 कॉमन। ये हो जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 4x - 1, सॉरी 4x + 1। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, राइट। अब हमें दिख रहा है 4x + 1 इधर भी है, तो 4x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, और x - 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 4x + 1 and x - 3. So guys, that's it for today's video. We will be discussing question number 2 in our part 2. So don't forget to watch that. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Goodbye.